Hello everyone, a warm good morning to all of you. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏ SSB PGTର ସିରିଜ୍ ନମ୍ବର 9କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ବଜାୟ ରଖିଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆସି 18 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଲଜିକାଲି ଆଉ 29 ଡେଜ୍ ରହିଲା। ତ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ନିଜର ଟପିକ୍ ସହିତ ଟଚ୍ ରହିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହି 29 ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବ। ତ ବେଶୀ ମୁଁ କିଛି କହି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ କୁଣ୍ଠାକୁ ବଢ଼ଉ ନାହିଁ। ଏଇଠି ହିଁ ଆଜି ଆମର SSB PGTର 9 ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିରିଜ୍ ଆସିବ। ତ ଏହି ନୋଟ୍ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଠାରୁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ବା 10 ସେ କହୁଛି, ଅଣ୍ଡର ଦ preamble of Indian Constitution, we the people secure to all citizens. Option A justice, social, economic and political. Option B liberty of thought, expression and belief. Option C equality of status and of opportunity. And option D all of the above. ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure its all citizens. ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। আর ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ସିଟିଜନ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍, ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକ୍, ପଲିଟିକାଲ, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and promote them among them all, fraternity, assuring the dignity and unity and integrity of the nation। ये जो टेक्सटा अच्छे आपको गोटे बाय हार्ट करदे जोटा कि आपको बहुत हेल्प करिवो इंटरव्यू रे SSB रो PG लेक्चर हो किंबा OPS PGT रो। कारण एमती क्वेश्चन आस्थाए जे प्रियाम्बल को समान कहिबे तुम प्रियाम्बल को आम आगे कुह बा रिसाइट करो, तो तुम ये भाव कहबार अच्छे, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन आम देखीचु तो इंटरव्यू रे तो इम्पोर्टाट अटे। तो क्वेश्चन नंबर 10 रो आंसर डी। से भाव क्वेश्चन नंबर 11 से कहूँ, which of the following does not constitute executive power of the President of India under Article 53? Option A legislative power, B veto power, C administrative power, D military power। आंसर आपणकर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए हो लेजिस्लेटिव पावर। कारण एक्जिक्यूटिव पावर जोटा कि आपणकर से अपॉइंटमेंट कर डिफरेंट डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पावर तो अलग प्रकार पावर। तो सही ही क्वेश्चन ही आंसर अच्छे आपणकर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हो ए। क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़िया से कहते द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया शाल कंसिस्ट ऑफ।
काउंसिल ऑफ स्टेट्स माने कि राज्यसभा आपणकर जोटा कि अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट। तो कौन कंसिस्ट अच्छे काउंसिल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, representative of each state, the representative of union territory and all of the above. आपणकर आंसर एट हो ऑप्शन डी। आपणकर ऑप्शन डी हो जोटा कि काउंसिल ऑफ स्टेट रे हम देखिछंती जे सेठे रिप्रेजेंटेटिव प्रत्येक स्टेट रो अछंती, प्रत्येक यूनियन टेरिटरी अछंती लाइक एवं मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट जोटा आपण जानछंती 12 जण मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होइथंती जेमानकर लाइक लिटरेचर, आर्ट, साइंस देन तो ए फील्ड से कंट्रीब्यूशन अच्छी राइट। तो ये जिनटा करेक्ट अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर आपंकर डी हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 13 दैट पंची कमिशन वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू ऑप्शन ए लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शन रिलेशन ओके रिलेशन, देन ऑप्शन बी इंटरस्टेट रिलेशन, सी सेंटर स्टेट रिलेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। ये आपंकर आंसर हो ऑप्शन सी जे सर पंची कमिशन आपंकर अपॉइंटेड होता केबे ना 2007 होता एवं से सेंटर स्टेट रिलेशन कथा से कही राइट। पंची कमिशन से कही जे गवर्नर शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। से कही पंची कमिशन जे अपॉइंटमेंट जो आपंकर इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट shall be applicable to the impeachment process of the governor। तो ये भाव में से आपंकर पंच कमिशन बहुत जिन कही 2007 से आपंकर जोटा कि सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन राइट। क्वेश्चन नंबर 13 रो आंसर हो गला आपंकर कौन ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन नंबर 14 कहूँ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस ऑन any member of any matter of public importance referred to it by the President of India, B matter referred to it by the Governor Reserve Bank of India, matters referred to it by the state governors and D none of the above। जो आपनकर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अच्छे प्रेसिडेंट करो एवं सेटे निम्नलिखित कोर्ट एप्रोप्रिएट से पचार। यहाँ आपंकर आंसर हो ऑप्शन ए जोटा कि आम पढ़ी जो आपंकर सुप्रीम कोर्टर एडवाइजरी जुडिकेशन अच्छे आर्टिकल 143 रे आर्टिकल चेक करेंगे तो सही सी कौन करेंगे प्रेसिडेंट को किसी सजेसन दे पारे जदि प्रेसिडेंट किसी रेफर करुँच राइट। तो सहीटा है प्रेसिडेंट आपंकर सुप्रीम कोर्टर कौन कौन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन राइट। तो जिनटा इंपोर्टाट सेमती आप मन रखिए सुप्रीम कोर्टर आर्टिकल 131 जोटा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा सेमती से मन रखिए आर्टिकल 141 जोटा कि सुप्रीम कोर्टर लॉटा हूँ सब कोर्टर बाइंडिंग राइट। तो इमती सब प्रोविजन अच्छी जोटा कि आपन को मन रखार अच्छी खास कर आर्टिकलटा जोटा कि बहुत इंपोर्टाट अच्छे राइट। सेमती सुप्रीम कोर्ट आपंकर 28 जनवरी जो 1950 तार फाउंडेशन होता राइट। तो जिनटा टी मन रखिए से कहते द पावर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 पहुँच गले आम कहते पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड बाय
ऑप्शन ए स्पेशल ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी सुप्रीम कोर्ट, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड डी ऑल ऑफ द एबव। ना जो आपनकर पावर अछि जुडिशियल रिव्यूटा इंडिया रे एक्सरसाइज का द्वारा होइथाय। एटा आपनकर आंसर हे जिवो ऑप्शन बी जोटा कि सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू जोटा कि आपनकर आमे कहि परिबा जो लॉ को से माने रिव्यू करछन जहा पे लेजिस्लेचर बा एग्जीक्यूटिव द्वारा जोटा कि लॉ बा एनाक्टमेंट हेतिबो, तो सेटा आपनकर सुप्रीम कोर्ट पाखरे अछि जोटा कि आमे पढुचंदी ना आर्टिकल 32 एवं हाई कोर्ट पाखरे सेटा मध्ये अछि आर्टिकल 226 रे एवं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा एटा मध्ये कहि जायछि जे हाई कोर्ट्स आपनकर सेंटर लॉ को मध्ये रिव्यू करि परिबो। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पाखरे आपनकर जुडिशियल रिव्यू अछि, ए कथरे आपण मन रखिबे। एवं क्वेश्चन नंबर 15 रो आंसर होछि आपनकर एठे ऑप्शन नंबर बी। तापर से पचारछन्ती क्वेश्चन नंबर 16 रे हमें देखिले से रिसेंटली इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। रिसेंटली इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। ऑप्शन ए फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सी नोटा ऑप्शन ऑन ईवीएम एंड डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आंसर आपनकर एठे हे जिवो ऑप्शन कोन ना सी हे जिवो। आपनकर जो प्रोविजन अछि नोटा सेटा रिसेंटली 2013 रे आपनकर आस्थिला। एवं जदि आम ईवीएम कथा कहबा ईवीएमटा आपनकर फास्ट स्टेट जे कि केरला 1982 रे ईवीएम को आरंभ करथिले। नोटा आपनकर 2013 आरंभ होला। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म कथा कहले आम कथा बुझी थाउ। एवं एठा आपन मध्य मन रखियार अछि जो आपनकर वीवीपैट अछि गोटे क्वेश्चन आसीबो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट ता कहउछंती सेटा आपनकर प्रथमे कोड देखिबा हम पाइले ना नागालैंड रो गोटे नास्केंड असेंबली अछि सेठी आपनकर वीवीपैट प्रथमे यूज हेतिला। तो एबोडी क्वेश्चन गुडा बहुत इंपोर्टेंट। आशा करूची आपण माने आको पढिबे आ एटा आपनकर पेड नोट रे मध्य करंट अफेयर गोटे पीडीएफ अछि सेतिरे हमर लिखा जाइछि। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आमे बढ़िबा। क्वेश्चन नंबर आपनकर क्वेश्चन नंबर आमे बढ़िबा 21 जोटा कि आम पे इंपोर्टेंट अछि से कहउचंदी प्लाटोस रिपब्लिक डील्स विथ। प्लाटोंगर जो पुस्तक रिपब्लिक सेटा का विषय कहिछि। ऑप्शन ए प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर, बी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्डर सोसाइटी, सी नॉन मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी एंड डी नॉन ऑफ द एबव। एटा आपनकर आंसर हे जिवो ऑप्शन बी
जोटा कि प्लाटोस रिपब्लिक डील्स विथ स्ट्रक्चर्ड और ऑर्डर सोसाइटी कथा से कहते राइट। तो से गोटे लाइक गोटे स्ट्रक्चर देते जमी आम हे राष्ट्र जोटा कि विभिन्न क्लास तांकर निज निजर जो असाइन्ड टास्क अच्छी सोल्जर तांकर काम करेंगे, फिलोसोफर तांकर काम करेंगे, प्रोड्यूसर तांकर काम करेंगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर हो गला आ जहाँफल प्रत्येक वर्ग लोक निज निज वर्गर काम करेंगे, गोटे ऑर्डर सोसाइटी मेंटेन रही पारे, गोटे हार्मोनी क्रिएट हो से भाई कथा कहते। तो ऑप्शन ये बी आपंकर होगा। ऑप्शन ए तो हेनी प्राग्मेटिक कथा हेनी कारण से गोटे आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव राष्ट्र कथा कहते राइट। आ ऑप्शन सी से जो आप नॉन मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी से तो मेरिटोक्रेसी कथा कहते जी कि आप सोल्जर जो मैंने कि डिस्क्वालीफाई से आमर प्रोड्यूसर जो आपड़ अच्छा तो क्वालिफिकेशन अनुसार से स्क्रीनिंग होता है जोटा कि एग्जाम होता है आपंकर टीचिंग सिस्टम द्वारा से कहते। तो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी हम नॉन मेरिटोक्रेटिक ना। तो आंसर आपंकर एमती ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 21। तापर आम पहुँचले क्वेश्चन नंबर 22 से कहते प्लाटो अलाउड ओमेन। प्लाटो ओमेन को अलाउ करथिले बा ओमेन को कौन करथिले अनुमति देथिले कोथि ना टू हैव अ मैरिज परमानेंट मैरिज, टू बी रूलर्स एंड लेजिस्लेचर्स, सी टू रियर द चिल्ड्रेन एंड डी नॉन ऑफ देम। ये आपंकर आंसर हो क्वेश्चन नंबर 22 रे ना ऑप्शन बी हो पुणी थे ऑप्शन बी ना टू बी रूलर्स एंड लेजिस्लेचर्स। प्लाटो माने से समय गोटे पुरातन थिंकर बा जी कि ग्रीक थिंकर जी कि माने से प्रथम कहले आपंकर कौन ना ओमेन को आम रूलर भाव अनुमति दे पार लेजिस्लेचर भाव अनुमति दे पार। किंतु आप आरिस्टोटल कथा देखिए ये आरिस्टोटल गोटे इमैच्योर कथा कहते जोटा कि सी कहते ओमेन आमर रूलर हो पारे ना, ओमेन को सिटीजनशिप कथा दे नथिले राइट। तो प्लाटोर डेवलपमेंट आइडिया आप देखिपारे कंपैरेटिव टू द आरिस्टोटल्स। तो ऑप्शन आपंकर ये बी होगा जोटा कि क्वेश्चन नंबर आप 22। तापर क्वेश्चन नंबर 23 से कहते प्लाटो sorry Aristotle is regarded as the father of political science for being the first thinker to a classify the constituency, b to use comparative method, c to treat political science as a master science, and d all of the above. आपणकर ये आंसर कौन हो समस्त जानते जे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहुए मेजर कंट्रीब्यूशन टू द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कहुए कौन ना से क्लासीफाई करते कन्स्टिट्यूशन जोटा कि 158 तापर से यूज करते कंपैरेटिव मेथड को कन्स्टिट्यूशन पढ़ाई आ पॉलिटिकल साइंस को सी मास्टर साइंस बोली सी कहते। तो ऑप्शन आप कौन हम ये डी हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ। तापर नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन नंबर 24 ना अरिस्टोटल प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ स्लेवरी इन हिज बुक। को बुक रे से थ्योरी ऑफ स्लेवरी कथा कहते अरिस्टोटल। ऑप्शन ए पॉलिटिक्स आपणकर बी पोएटिक्स, सी मेटाफिजिक्स एंड डी आर्ट ऑफ रेटोरिक्स। आपणकर ये आंसर हो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए
मन रखिए ये जो प्लाटोंकर सॉरी अरिस्टोटलंकर जो बुक अच्छी पॉलिटिक्स से जो पॉलिटिक्स रो माने पाखापाखि 8टा तार पार्ट अच्छे राइट से 8टा पार्ट रो फास्ट पार्ट रे से का कथा कहउचंती स्लावेरी कथा कहउचंती राइट तो स्लावेरी कौन से कहउचंती ना स्लावेरी होची गोटे इम्पोर्टेंट आउ से गोटे से यूटिलिटेरियन अप्रोच यूज करचंती जे स्लावेरीटा आपणकर बहुत इम्पोर्टेंट जोटा कि हेल्प करथे मास्टर को मास्टर स्लावेरी को लीजर टाइम रे यूज करथे आउ स्लावेरी गोटे कौन ना निज बेनिफिट मध्य जदि से मास्टर पाखे रहिबो सी मध्य इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो पारे एवं से स्लावेरी मध्य मुक्त हो पार तो ये भाव से स्लावेरी को माने बहुत विस्तृत भाव में वर्णना करते आशा करुँच आप एसएसबी जो लेक्चर में क्वेश्चन आसीला आगामी दिन में देखा पाइबे तो ये यूट्यूब रे वीडियो बनई जैसे आप देखिपारे स्लावेरी कौन 1 मिनिट्र वीडियो बहुत भल वीडियोटा तापर आम पहुँचले क्वेश्चन नंबर 24 ए पर 25 से कहते माकियाभेली व्यूड पॉलिटिक्स एज माकियाभेली पॉलिटिक्स को केम भाव देखुं ऑप्शन ए स्ट्रगल फॉर एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर सी स्ट्रगल फॉर कंसोलिडेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर डी ऑल ऑफ द अबव आपणकर ये आंसर हो कौन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपणकर ये ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट माकियाभेली माकियाभेली माने अनुଯାयी कोटा ट्रू नहीं से पचारुछंती ऑप्शन ए ही एक्सेप्टेड ए सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑप्शन बी ही सबऑर्डिनेटेड मोरल प्रिंसिपल टू हार्ड पॉलिटिक्स ऑप्शन सी हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाज आउट ऑफ ट्यून विथ हिज टाइम ऑप्शन डी हिज फिलोसफी वाज पब्लिक नॉट प्राइवेट आपणकर ये आंसर हो कौन क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी से कहले हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाज आउट ऑफ ट्यून विथ हिज टाइम ना तांकर जो पॉलिटिकल तमे तांकर जो चिंताधारा बा तांकर जो रियलिस्टिक आउटलुक से देथिले माकियाभेली से कौन करथिले तांकर जो टाइम रो लाइक सिचुएशन को बेस्ड करी से तांकर आइडिया को बा थ्योरी को बा पॉलिटिकल थॉट को से प्रेजेंट करथिले सेति पई तो कह जायछि ना एवरी पॉलिटिकल आपणकर जो अच्छी कौन एवरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एवरी पॉलिटिकल थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम तांको निज निजर समय से होचंदी गोटे गोटे कौन आपणकर शिशु ओके तो से जहाँ भी से देखिले परिवेश ताकू बेस कर से थॉट देथिले आपण इवेन हॉब्स कथा कहतु आपण इवेन प्लाटो कथा कहतु आपण इवेन जॉन लॉक कथा कहतु ग्लोरियस रिवोल्यूशन होगला थॉमस हॉब्सकर सिविल वार कथा होगला रुसोंकर आपणकर कथा होगला तो से सबू जगह निजर टाइम को बा निजर सिचुएशन कंटेक्स्ट को बेस करी तांकर थ्योरी बा तांकर से जो थॉट को से माने गोटे सिस्टमेटिक वे प्रेजेंट करछन्ती राइट तो सहीटा कहगला कौन ना जो आपणकर एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम तो ऑप्शन सी कौन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाज आउट ऑफ ट्यून विथ हिज टाइम एटा भूल होगला जोटा कि आपन क्वेश्चन रे पचारछन्ती नॉट ट्रू तो ऑप्शन सी होगला आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ना व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट थॉमस हॉब्स ऑप्शन ए हिज फिलोसफी वाज दैट ऑफ इंडिविजुअलिज्म ही saw the state as a conciliator option C critics deny reality of his state of nature option D all of the above
ये आपंकर आंसर हो कौन ऑप्शन ए हो से गोटे इंडिविजुअलिज्म बा इंडिविजुअलिस्ट थॉट कथा से कहते फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म राइट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपनकर क्वेश्चन नंबर 28 रे ना जॉन लॉक कंट्रीब्यूटेड टू द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी थ्रू हिज आइडिया ऑफ ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऑप्शन बी कंसेंट, ऑप्शन सी टॉलरेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये आपंकर आंसर हो क्वेश्चन नंबर 28 रो ऑप्शन डी, जोटा कि आपंकर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो लॉकर अच्छी से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कथा कहते जोटा कि स्टेट ना रूल अकॉर्डिंग काम कर सोसाइटी गवर्न हम एज पर द एस्टाब्लिश रूल रेगुलेशन। तापर कनसेंट लोकों कनसेंट अनुजाई स्टेट बा गवर्नमेंट काम कर अच्छे राइट। टॉलरेशन से कथा कहते जोटा कि आपण गोटे से मोरालिटी कथा कहते टॉलरेशन कथा कहते जोटा कि फ्रीडम ये सब जिन आपटे आसूँ राइट। तो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 28 रो। तो क्वेश्चन नंबर 29 आम बढ़िया ना द डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर वाज एडवोकेटेड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन आप समस्त जानते जोटा आंसर होगा कौन ऑप्शन बी जर्मी बेंथम। टाइम देवा दरकार नहीं ये। तापर क्वेश्चन नंबर 30 से पचार जीन जैकस रूसो आर्ग्यूड ऑप्शन ए विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी इज नॉन एक्जिस्टेड, ऑप्शन बी देयर कैन बी लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी, ऑप्शन सी देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ऑप्शन डी ए एंड सी। आपणर आंसर हो जीन जैकस रूसो आर्ग्यू करते कौन ना विदाउट लिबर्टी इक्वालिटी आपणकर विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी इज नॉन एक्जिस्टेंस एंड देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जोटा कि आपणर आंसर हो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। से गोटे माने थिंकर थिले जे कि लिबर्टी और इक्वालिटी को से रिकनसाइल करथिले बा कनसाइल करथिले राइट। आपण जानथिबे से इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को दि भाग माने कैटेगोराइज करथिले, गोटे हला आपनकर नेचुरल इनइक्वालिटी आ गोटे हला आपनकर कन्वेंशनल इनइक्वालिटी राइट। आ पॉलिटिकल थ्योरी में का कथा पढि थाउ कन्वेंशनल इनइक्वालिटी कथा पढि थाउ राइट। तो से गोटे थिंकर जे कि लिबर्टी कथा कहथिले ता संग संग से इक्वालिटी कथा मध्ये कहथिले, दिटा को से रिकनसाइल कर दिया चेष्टा करथिले राइट। तो एटा आपनकर हला कोन जीन जैकस रूसोंगर आइडिया। एवं आउ गोटे कथा आम बुझार अच्छी ये गोटे प्रथम मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जे कि साइंस जे कि लॉजिक जे कि रीजन को जे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को विरोध करते किए आपणकर लाइक जीन जैकस रूसो। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 31 जोटा कि से कहते जेस मिल एडवोकेटेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ माइनॉरिटी, to provide proportionate power to minority, to option C to mitigate the exclusion of minority, option D all of the above।
तो आपनर एटा आंसर है कौन ना ऑप्शन डी जो कि जेएस मिल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कथा कही कहीं से कही ना प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी जोटा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माध्यम जो माइनॉरिटी अच्छे जहाँ भी परसेंटेज ऑफ वोट शेयर अच्छी रिप्रेजेंटेशन से पाइपर प्रोवाइड प्रोपोर्शनल पावर टू देम ऑल्सो एंड टू मिटिगेट द एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी जो आपंकर माइनॉरिटी माने वंचित रोते पावर पॉलिटिक्स रु आ पावर शेयरिंग रु सेमानु आड कर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राइट। तो यहाँ है आप ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 31। देन 32 से कहते द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म इज लार्जली डिपेंडेड अपॉन द टीचिंग ऑफ ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी टी.एच. ग्रीन, सी जर्मी बेंथम एंड डी लाइक समथिंग एल्स। ये आप क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स राइट। तो से आपंकर साइंटिफिक सोशलिज्म आप पढ़ाई जोटा कि कार्ल मार्क्स साइंटिफिक सोशलिज्म कथा कहते एवं से क्रिटिसाइज करते आपंकर अर्ली सोशलिस्ट गोटे यूटोपियन सोशलिस्ट बोली और कार्ल मार्क्स जो साइंटिफिक सोशलिज्म अच्छे से गोटे माने मेथड यूज करते जोटा कि से हिस्ट्री को बुझी डायलेक्टिकल मेथड माध्यम से बुझी आपणकर आपणकर कौन जो कनसेप्ट देते से क्लास स्ट्रगल हो कि स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री दो सीधा साइंटिफिक मेथड से प्रेजेंट करते। तो साइंटिफिक सोशलिज्म आम जो कहूँ से कार्ल मार्क्स बा फ्रेडरिक एंजेल्स कथा कही था राइट। तो क्वेश्चन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 32 आंसर राइट। देन क्वेश्चन नंबर 33 से कहते ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए नॉन कोडिफाइड, बी फ्लेक्सिबल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, सी बाइकैमरालिज्म, डी इवोल्यूशनरी ग्रोथ। आपनकर ये आंसर हो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन बी हो ना फ्लेक्सिबल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आपनकर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट नुहे आम जानते ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रे हाँ फ्लेक्सिबल अच्छी किंतु सेटा फेडरल नुहे दिस इज यूनिटरी राइट। तो ऑप्शन बी आपनकर ये आंसर हो। तापर क्वेश्चन नंबर 33 आंसर बी पर क्वेश्चन नंबर 34 से कहते द एक्चुअल पोजिशन ऑफ ब्रिटिश किंग इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन ए he reigns and rules, he reigns but does not rules, and C he rules but does not resign आम कही परिबा राइट। द ऑप्शन डी neither does he reign nor does he rule जोटा कि आपनकर ओपीएससी पीजीटी रे ए क्वेश्चन डिटो आस्थिला माने से ओपीएससी पीजीटी को कहया बोले कॉपी पेस्ट कर देथिला किछ नाही बोले सेमती ऑब्वियसली गोटे कथा सियोर से क्वेश्चन जी बनाऊँ क्वेश्चन बनवा इट इज नॉट ए वेरी लाइक इजी जॉब राइट। तो ऑब्वियसली से केते क्वेश्चन बनइबे केते क्वेश्चन कोड कॉपी पेस्ट मारिबे केते क्वेश्चन एमती बन भूल करेंगे हम ऑब्वियसली सेटा हम एटा जोड़ा कि नेचुरल कथा। तो किंतु आमर ऑब्जेक्टिव होची कोन आमे मध्ये एमती क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया जोटा कि आपन एग्जाम पे इंपोर्टेंस आ आपन गोटे फील होबे जे हां आमे एग्जाम पाई ही सब करूछु कारण और हम कोन एग्जाम पाई ही होची। तो सेटा हम टारगेट रहयार अछि आ नहले मु तो 1000 क्वेश्चन दिन कर देबी 500 कर देबी किछ फायदा नै किंतु ऑब्जेक्टिव होची कोन क्वेश्चन दैट शुड बी एज पर आवर रिक्वायरमेंट राइट। तो सेटा हमर ऑब्जेक्टिव रहिबा आवश्यक।
तो यहाँ आप जानते ब्रिटिश किंग जो आपणकर पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी ब्रिटिश रे से केवल ही आपण कौन गोटे मोनार्की बा जो रिजिन आम कथा कहू रिजिन ओके राइट इट्स नॉट रूल रेगुलेशन अनुसार हुए ना यहाँ जोटा कि गवर्नमेंट द्वारा हुए तो ऑप्शन बी हो गला आंसर आप क्वेश्चन 34 ही इज रिजन्स बट नॉट द रूल्स रिजिन टाक पढ़ीदेवे जोटा कि प्रोनाउंसिएशन भूल होता तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 35 पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी इज ए डेफिनेट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन को पॉलिटिकल सिस्टम रे आपनकर पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी हम देखियो पाई थाउ ऑप्शन ए यूके बी यूएसए सी इंडिया डी ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी एटा आपनकर आंसर है पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी इज डेफिनेट फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन कौन ये आंसर आपनकर ऑप्शन है यूके समस्त जानते राइट तो ये आपनकर हो गला कौन जो क्वेश्चन हो गला बर्तमान आम टे ओडिशा पॉलिटिक्स आड़ को बढ़िया जोटा कि आमर गोटे इंपोर्टाट यूनिट तो जो आम आपड़ कहते कौन ना हिस्ट्री ऑफ जोटा कि आपड़ चीफ मिनिस्टर कथा कहतु ओडिशा पॉलिटिक्स रो बा ओडिशा पॉलिटिक्स रे वर्तमान जो आमर करेन्ट पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी से परिप्रेक्षी आमर बहुत इंपोर्टाट हो जाऊँगी जे आम जाना हिस्ट्री ऑफ चीफ मिनिस्टर हिस्ट्री ऑफ चीफ मिनिस्टर आपड़ प्रथम देखिए ना हरेकृष्ण महाताब जे कि प्रथम चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इन इंडिपेंडेंट इंडिया हु कंप्लीटेड हिज फुल टेन्यूर तो भारत जो स्वाधीन है तापर आपंकर जो हरेकृष्ण महाताब चीफ मिनिस्टर हेले सी प्रथम थर पर जे कि फुल टेन्यूर कंप्लीट करदे फास्ट टाइम्स तापर तो पर जी कंप्लीट कले कि हरेकृष्ण महाताब यहाँ आपंकर कंप्लीट करते राइट तो ये जिनसा आपटे मन रखिए जोटा कि आपन को बहुत इंपोर्टाट हो जाऊँगी तापर आपनकर आसला कौन ना फास्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर इन ओडिशा रे किए श्री हेमानंद बिश्वास तो प्रथम जब ट्राइबल चीफ मिनिस्टर से पचारे तो ओडिशा रे किए ना आपणकर हेमानंद बिश्वाल हो गले कौन ना श्री हेमानंद बिश्वाल फास्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा सेकेंड ट्राइबल चीफ मिनिस्टर श्री गिरिधर गमांग वर्तमान जे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर अच्छा सी होती श्री मोहन चरण माझी जी की थर्ड ट्राइबल चीफ मिनिस्टर राइट तो क्वेश्चन आसी जापे जे प्रथम ट्राइबल चीफ मिनिस्टर किए आपणकर श्री हेमानंद बिश्वाल एंड इंटरेस्टिंग कथा हूँ कौन द थ्री ओनली चीफ मिनिस्टर हु हेल्ड फ्रॉम द वेस्टर्न ओडिशा तो आपणकर जो हिस्ट्री चीफ मिनिस्टर कथा देखिए जोटा कि 3 जन चीफ मिनिस्टर आसते केवल वेस्टर्न ओडिशा जो आम जो पढ़ुंट राइट ओडिशा पॉलिटिक्स कथा गोटे अनइभेन पॉलिटिकल सिस्टम बा अनइभेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आम पाई था जोटा कि आम देखिले केवल 3टा चीफ मिनिस्टर जोटा कि इतिहास चीफ मिनिस्टर ओडिशार वेस्टर्न ओडिशा आसुँच राइट तो ये जिनसा आम देखिले ये राइट देन नेक्स्ट आम बढ़िया ऑल अबाउट ओडिशा पॉलिटिक्स रे ऑल अबाउट ओडिशा पॉलिटिक्स रे मु आपको कही आगुरी जो बीजेडी डिसेम्बर 1997 रही जोटा कि फाउंडर थे नवीन पट्टनायक देन आइडियोलोजी तार हूँ ओडिया नेशनलिज्म आउ सेक्युलरिज्म फैक्शन से जनता दल पार्टी फैक्शन क्रिएट होता राइट तो यहाँ आम देखिले ये तापर बर्तमान आम देखा सीट मैट्रिक्स एंड भोट सेल्स बर्तमान कौन सीट मैट्रिक्स और भोट सेल 2024 अच्छी ओके संगे 2014 आम देखा 2014 जो आपंकर 15 एसएलए है स्टेट लेजिस्लेटिव आसेम्बली है बीजेडी ये आसेम्बली विधानसभा 17टा सीट बाजी मारी एवं लोकसभा से 20टा सीट बाजी मारी किंतु 2024 17 जो आपंकर एसएलए विधानसभा निर्वाचन स्टेट लेजिस्लेटिव आसेम्बली अच्छी बीजेपी कौन कले 78टा बाजी मारे बीजेडी कौन कले आपंकर 51टा बाजी मारे आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन कले 14टा सीट बाजी मारे तो एमती ही आपंकर बीजेपी कौन कले लोकसभा टोटाल 20 सीट्स को से कौन कले विजय लाभ कले तो ये आपंकर सीट मैट्रिक्स होगा 2024 जोटा कि यूपीएससी पीजीटी आसाला आगामी दिन में आसबार बहुत चांसेस अच्छी तापर हाईएस्ट नंबर ऑफ भोट शेयर्स आपंकर जो देखिले आम बीजेडी हाईएस्ट नंबर ऑफ भोट सेट करते 2024 40.22% भोट शेयर होता बीजेपी आपंकर बाजी मारी 40.07 भोट शेयर्स तो ये आप कंपेयर एनालाइज करेंगे तो बीजेडी भोट शेयरिंगटा कौन होगा टे परसेंटेज अधिक होगा राइट तो आप भावुए जे सार आप जोटा पढ़ाऊँ यहाँ हुए तो एग्जाम पर नोट आड करते ना
तो पेड नोटा मु ए जिनछटा आपणकर टू बी ऑनेस्ट ओपीएससी पीजीटी एग्जाम पूर्व ही आड करथिली कारण मु गोटे एनालाइज करथिली जे क्वेश्चन आसीबा ही आसीबो राइट। तो आप भाई पारे जे पेड नोट्र महत्व केते एवं आपन केभଳି भाव सरल भाव गोटे टेबुल माध्यम रे सहज उपाय लिखाई जोटा कि आपको बुझापी बहुत इजी हम और आप मन रखिपारे जोटा कि रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट। कारण आपड़ गोटे कौन मास्टर एग्जाम दौना से कहानी गप लिखे आप गोटे टेबल गोटे चार्ट गोटे सीट गोटे मध्यम देले जिनछटा गोटे पिक्चराइज भिजुआलाइज मन राइट। तो से पेड नोट जब नहीं ना तो परचेज करूँ पढ़ू नहीं आपको पेड नेट नहीं रखिले हेनी ये राइट। ये सब डाटा गुड़ा आम इलेक्शन कमिशन वेबसाइट रू अपलोड हो राइट। तापर आम नेक्स्ट बढ़िया कंपेरिजिव नोट्स ऑन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन ओडिशा। तो से कहते आपणकर ना गणतंत्र परिषद इज द फर्स्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन ओडिशा व्हिच वाज फॉर्मड इन 1950 एंड कौशल उत्कल प्रदेश एज द प्रिडिसेसर ऑफ द गणतंत्र परिषद। जो आपणकर गणतंत्र परिषद है सी हूँ प्रथम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कौटे ओडिशार जब क्वेश्चन आसला ओडिशार प्रथम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी फास्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नाम कौन गणतंत्र परिषद जोटा कि 1950 राइट। तापर ता पूर्व ताको आमे कौन कहते ना कौशल उत्कल प्रजा परिषद बोली कहते। ये पॉलिटिकल पार्टी आपणकर मेनली वेस्टर्न ओडिशा माने डोमिनेट करथला जे कि ट्राइबल को रिप्रेजेंट करथला राइट। तापर नेक्स्ट देखले आमे कौन ना फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ गणतंत्र परिषद इज राजेंद्र नारायण सिंहदेव। जो राजेंद्र नारायण सिंहदेव थिले से प्रथम आपणकर प्रेसिडेंट थिले गणतंत्र परिषदर आ गणतंत्र परिषद बा जीपी वाज ऑल्सो ए पार्टनर इन द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट दैट वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन मे 22 मे 1959। तो जो प्रथम कोलिशन गवर्नमेंट होता भारत में जो कांग्रेस आ गणतंत्र परिषद मिसिक करते राइट। तापर लेटर ऑन गणतंत्र परिषद बा जीपी वाज अलाइन विथ स्वतंत्र पार्टी। परवर्ती समय कौन है आपंकर गणतंत्र परिषद कौन है स्वतंत्र पार्टी को मर्ज हो गले राइट। तो जिनटा मन रखिए सी पचारदेवे जे परवर्ती समय इन अपकमिंग इन लेटर ऑन द गणतंत्र परिषद मर्ज इनटू व्हिच पॉलिटिकल पार्टी। तो मन रखिए स्वतंत्र पार्टी। तो ये गोटे क्वेश्चन बनीगला। तापर आम थर्ड रे देखिले कौन सेकेंड रे विजु पट्टनायक वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ उत्कल कांग्रेस। उत्कल कांग्रेस रो फाउंडिंग फादर किए विजु पट्टनायक जे कि कांग्रेस लीडर थिले। तापर उत्कल कांग्रेस से स्विच करले एंड दिस पार्टी वाज पार्ट ऑफ थर्ड कोलिशन गवर्नमेंट इन ओडिशा दैट वाज कॉन्स्टिट्यूट इन 1971। तो जो तृतीय आपणकर गठबंधन सरकार थिला ओडिशा रे तार भाग किए नहीं उत्कल कांग्रेस मध्य तार नेतृत्व थिले। पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग स्वतंत्र उत्कल कांग्रेस एंड झारखंड। जो थर्ड कोलिशन पॉलिटिकल पार्टी आपन थिला किए थिले स्वतंत्र थिले उत्कल कांग्रेस थिले और झारखंड पार्टी थिले राइट। तापर नेक्स्ट आम देखिले कौन ना हरेकृष्ण महताब फॉर्मड जन कांग्रेस इन 1966। तो 1966 रे पुणी से कांग्रेस रु गोटे गठन कले कौन जन कांग्रेस किए हरेकृष्ण महताब एंड दिस पार्टी वाज द पार्ट ऑफ सेकेंड कोलिशन गवर्नमेंट इन ओडिशा व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूट 1967। जो 1967 रे आपणकर नरसिंह रावदेवकर जो चीफ मिनिस्टरशिप रे गोटे कौन होता कोलिशन गवर्नमेंट होता से आपणकर जनसंघर कौन थे पार्टिसिपेट करते 1966 रे क्रिएट होता राइट। तो तापर हम देखिले कौन ना इन द 1970s रे स्वतंत्र उत्कल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मर्जर विथ द अदर पार्टी टू द फॉर्म जनता पार्टी। तो आपणकर जो 1970 दशक आम देखिले 77 देखिले आम कौन जनता पार्टी गोटे गठन है एवं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो ओडिशा रे थिले सी माने मर्ज हो गले स्वतंत्र कथा को उत्कल कांग्रेस कथा को सोशलिस्ट पार्टी कथा को से माने जनता पार्टी कौन है मर्ज हो गले मिसी गले राइट। तापर इन 1990 विजु पट्टनायक बिकेम चीफ मिनिस्टर एंड ही वाज लीडिंग जो जनता दल राइट। तो विजु पट्टनायक कौन थे आप 1990 जी जनता दल को लीड करते से चीफ मिनिस्टर हो गले सेकेंड टाइम। फास्ट टाइम तो होते 1961 रे राइट। तापर सेकेंड टाइम हो गले से 1990 से हो गले राइट। तापर इन आम देखिले कौन आगू बढ़िले ना इन डिसेंबर 1997 बीजेडी वाज फॉर्मड एंड इन 2000 बीजेडी बीजेपी फॉर्मड फोर्थ कोलिशन गवर्नमेंट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेडी बीजेपी सिक्योर 68 एंड 38 सीट्स रेस्पेक्टिवली। तो आम देखिले कौन ना बीजेडी जोड़ा फॉर्म है 1997 रे आ बीजेडी बीजेपी सहित मिसी 2000 रे से माने गठबंधन सरकार गठन कले जोड़ा कि आम चतुर्थतम गठबंधन सरकार बा फोर्थ कोलिशन गवर्नमेंट कहू। ये बीजेडी बाजी मारे 68 सीट्स एंड बीजेपी बाजी मारे 38 सीट्स तांकर एठू ही जर्नी आरंभ होला पॉलिटिकल कौन गोटे
फिगर जोटा कि सेमान गवर्नमेंट क्रिएट कर पारे एटा हला आपनकर कोन गोटे सॉलिड आ गोटे बूस्ट आ गोटे आपन गोटे कोन मेडिसिन भलिया नोट जोटा कि ओडिशा पॉलिटिक्स पे इंपोर्टेंट ही इंपोर्टेंट तो मते लागिला जे एटा मु डिस्कशन करिवि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आशा करथिबि भल लागिथिबो आ एतिखि रे हमर आज सेशन मु ऑफ करूची जदि आपन सेशन को भल लागुची जदि पेड नोट आपन को भल लागुची बा ऑथेंटिकेट लागुची आपन हमर पेड कोर्स को जॉइन करि परिबे सेति पय मोर ईमेल आईडी को कांटेक्ट करि परिबे tapaspradhan42@gmail.com तो एतिकी आमर सेशन ड्रॉप होउची जदि भल लागिदियो चैनल गोटे लाइक कर देबे एवं सांग मान सहित शेयर कर देबे जदि सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब कर देबे एवं आपनकर जो अपकमिंग वीडियो पे मध्य अपेक्षा करेंगे सो ये कही आम सेशन ऑफ करुच्ची सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेसन थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।